Good morning, my dear student. In previous lecture, we have learned about skill-based activity where we have done an activity on the twister out of paper where we have prepared a paper fan. In twisted out of paper, we have followed various types of steps where we have took different color strip, 3 strips, then we have folded all the strips in an equal part, then we have put all the strips in a H form, then we have make a triangular shape, then we have pulled down all the down part of that strips, and then we have made a paper fan where we have stick a stick between that fan. By this we have made a twister out of paper, that is we have made a paper fan. So this paper fan we have learned in our previous lecture. So to know how we have made that paper fan, let us revise the video again. So student, I will show you the video again. So just have look on that video. So here is your video. I hope you have done the revise of your previous topic, that is twister out of paper, that is paper fan, by watching this video. Now let's move further. In today's lecture we are going to see our next topic, that is windmill. So we are going to learn how to make a windmill. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So let us start a new topic, that is how to make a windmill or a windmill. So student, kindly open your EVS combined book, page number 82, so that first we will discuss what all things and what all steps materials are given in your EVS combined book. Then we will start doing further. So now first, what is windmill? Windmill क्या है? A windmill is a structure that converts wind power into rotation energy by means of vanels called sails or blades. So windmill क्या है? तो windmill क्या करता है? जो हवा बह रही है वो हवा को विंड पावर एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो आपने देखा होगा विंडमिल कैसे दिख रहा है. यस, अभी आपको मैं जो पिक्चर दिखा रही हूँ ये विंडमिल है. तो आज हम ऐसे ही एक विंडमिल बनाने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू मेक लाइक दिस विंडमिल विथ हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक पेपर. ऑर्गेनिक पेपर यानी
क्राफ्ट पेपर जैसे ही रहते हैं, पर क्राफ्ट पेपर का एक साइड वाइट रहता है और दूसरा साइड कलर रहता है। ऑर्गेनिक पेपर का दोनों साइड कलर रहता है और वो थोड़ा थिक होता है, और जो क्राफ्ट पेपर होता है वो थोड़ा थिन होता है, वो जल्दी से फटता है, पर ऑर्गेनिक पेपर जल्दी से नहीं फटता है। सो विथ हेल्प ऑफ दोज ऑर्गेनिक पेपर वी आर गोइंग टू मेक अ windmill. So first we will see what all things we require to make the windmill. So things that we require to make a windmill is we require two color papers. So you can take any two color paper. तो windmill बनाने के लिए आपको कोई भी दो कलर का पेपर चाहिए, तो दो कलर का ऑर्गेनिक पेपर चाहिए। अगर आपके पास ऑर्गेनिक पेपर नहीं है तो आप क्राफ्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको कोई भी दो कलर का पेपर लेना है। दो पेपर लेने के बाद आपको ग्लू की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो जो है वो आपको चिपकाना है बुक में, इसके लिए ग्लू की ज़रूरत होगी। बस आपको खाली ग्लू चाहिए और ऑर्गेनिक पेपर चाहिए, और अदर थिंग्स दैट यू विल रिक्वायर आई विल टेल यू इन फर्दर वीडियो, so you will have look on that video afterwards. Now we will see what all steps we should follow to make a windmill. windmill बनाने के लिए कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। सो पहले हम जो भी बुक में स्टेप दिए वो हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम वीडियो थ्रू देखेंगे। सो जो बुक में विंडमिल बनाया है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। तो या तो आप बुक का भी कर सकते हो, या तो जो मैं सिखाने वाली हूँ वो भी कर सकते हो। जो भी आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बुक वाला इजी लगे तो आप बुक के स्टेप देख के भी कर सकते हो। अगर जो मैं सिखाने वाली हूँ आपको, अगर वो आपको इजी लगे तो आप वो कर सकते हो। सो लेट अस सी ऑल द स्टेप्स। सो द फर्स्ट इज टेक टू डिफरेंट कलर पेपर। तो आपको कोई भी दो अलग अलग कलर का ऑर्गेनिक पेपर या क्राफ्ट पेपर लेना है। जो भी पेपर आपके घर पे है, आपके पास अवेलेबल है। आपको जो पेपर लेने वाले वो स्क्वायर शेप में चाहिए। सो यू हैव टू टेक टू डिफरेंट कलर पेपर, देन यू हैव टू फोल्ड इट हाफ। तो आपको दोनों पेपर को हाफ हाफ में फोल्ड करना है, जैसे उन्होंने पिक्चर दिखाया है आपके कंबाइन बुक में, वैसे ही आपको करना है। देन फोल्ड द कॉर्नर्स। उन्होंने कॉर्नर्स के उधर एरो किया है, आपको दिख रहा है? यस। तो आपको वो एरो देख के वैसे ही फोल्ड करना है। सो यू हैव टू फोल्ड द कॉर्नर। सो दिस इज योर थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप इज फोल्ड अलॉन्ग विद द डॉट डॉट लाइन्स। जो डॉट डॉट लाइन्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं उधर ही आपको उस पेपर को फोल्ड करना है। यू हैव टू फोल्ड दैट पेपर अलॉन्ग विद डॉट डॉट लाइन्स। सो दिस विल बी योर फोर्थ स्टेप। सो फिफ्थ स्टेप में आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स, जॉइंट ट्रायंगल्स मिलेंगे। दोनों पेपर के आपको दो जॉइंट ट्रायंगल्स यानी 4 ट्रायंगल्स मिलेंगे। उसके बाद आपको सिक्स स्टेप में आपको वो ट्रायंगल्स को ओपन करना है, जैसे उन्होंने दिखाया है। यस। फिर आपको वो जो है दोनों पेज के वो आपको दोनों पेज के ट्रायंगल को नहीं ओपन करना है, आपको किसी एक पेज के ट्रायंगल को ओपन करना है। फिर आपको सेवन्थ में आपको वो जो एक पेज का आपने ओपन किया है उसके अंदर आपको सेकंड पेज डाल के ज्वाइन करना है। आपको दिख रहा है? वेरी गुड। जो मैं बना के आपको दिखाने वाली हूँ उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया है, उसमें मैंने उसके ऊपर ही स्टिक किया। तो आप यहाँ पे ज्वाइन वाला कर सकते हो, नहीं तो जो मैं स्टिक वाला आपको दिखाने वाली हूँ आगे वो भी कर सकती हूँ। और 8 स्टेप में आपको वो जो एरो दिखाया है उधर से आपको वो घुमाना या फोल्ड करना है। एंड देन 9 स्टेप you have to fold it between. You can see that arrow? Yes. And in 10 step your wind will be ready. So यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, 7 स्टेप से आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। इसके लिए मैं जो आगे का वीडियो दिखाने वाली हूँ उसमें मैंने 5 स्टेप तक ठीक किया है। उसके बाद 6 स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने वो ओपन नहीं किया, मैंने उसको वो जो पहला पेपर है उसके ऊपर दूसरा पेपर को स्टिक किया है, और वैसे ही मैंने विंडमिल को बनाया है। तो आप वो वाला भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है तो आप ये वाला भी कर सकते हो। सो दिस आर ऑल द 10 स्टेप्स विच हैव बीन गिवन इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 82 अबाउट हाउ टू मेक अ विंडमिल। सो स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक द विंडमिल। सो हियर इज द वीडियो। सो हैव लुक ऑन द वीडियो। नाउ we will make a windmill. So to make a windmill we require 2 color papers. So I will use orange color paper and black color paper. Then basic things, that is pencil, then scale,
and then eraser. So this is basic thing. Then we will require a glue and a scissor. So let's start doing a windmill. So these all things we require to make a windmill. I will repeat it again. Glue, eraser, pencil, scale, two color paper, that is orange and black, and scissor. So let's start making a windmill. We will take this two color paper, then we will start folding it. So first black color paper. Fold like this both paper. After folding, open the both paper. You will get a middle line. You can see आपको दोनों के अंदर मिडल लाइन मिली है. फिर वो मिडल लाइन को दोनों पार्ट्स को आपको फोल्ड करना है लाइक दिस. सेम वे यहाँ पे भी आपको करना है. ये करने के बाद आपको ये दोनों पार्ट फिर से फोल्ड करने. तो आपको ऐसा मिलेगा दो कलर का. ये दोनों मिलने के बाद आपको अभी क्या करना है, तो आपको जो पहला पेपर है उसको आपको ये ऑरेंज वाले पेपर को आपको यहां से फोल्ड करना है लाइक दिस. और जो सेकेंड वाले पेपर है उसको अपोजिट करना है. आपको यहां से करना है. तो आपको ऐसे दिख रही. उसके बाद आपको ये वाले जो ऑरेंज पेपर है उसको आपको उल्टा साइड से करना है. तो आपको यहां से करना है और ये साइड को आपको यहां से करना है. आप अपनी पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हो. तो आपको ऐसा मिलेगा. ऐसा मिलने के बाद आपको अभी क्या करना है, तो आपको ये वाला जो पार्ट है वो आपको ऐसा फोल्ड करना है. तो ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको ये जो दूसरा साइड है आपको इसके लाइन की उधर से ही आपको ऐसा फोल्ड करना है. और एक अपोजिट साइड में. तो आपको ऐसा शेप मिलेगा ऑरेंज का. दिख रहा है? वेरी गुड. सेम वेज आपको ये जो ब्लैक है उसका भी वैसे ही करना है. तो इसका ये साइड से आपको करना है. ये साइड से, दूसरा उसके अपोजिट से. तो आपको दोनों पार्ट ऐसे मिलेगी. मिल गए आपको दोनों पार्ट. ओके. दोनों पार्ट मिलने के बाद आपको ये दोनों को ऐसे रखना है. रखा. फिर आपको इसके अंदर आपको ग्लू अप्लाई करना है. तो आपको क्या अप्लाई करना है, जो ये दोनों ओपन साइड है ना इसके यहाँ पे आपको ग्लू अप्लाई करना है. तो मैं ग्लू लेने वाली हूँ. फिर थोड़ा ग्लू यहाँ पे, थोड़ा ग्लू यहाँ पे, थोड़ा ग्लू यहाँ पे, थोड़ा ग्लू यहाँ पे. फिर उसको अपोजिट मेरे को स्टिक करना है. तो यहाँ पे मैं अपोजिट स्टिक करने वाली. फिर उसको आपको प्रेस करना है.
प्रेस करने के बाद आपको आपका फैन मिल जाएगा, यानी विंडमिल मिल जाएगा। तो आपका विंडमिल रेडी है। कैन यू सी? यस, सो योर विंडमिल इज रेडी। I hope you have understood how to make a windmill by watching the video. Now student, let us recap what we have learned in our today's lecture. So in today's lecture we have saw what is windmill. Then we have saw what all materials we will require to make a windmill. Then we have saw each and every step to prepare a windmill, where we have to fold the paper. Then we have to fold those paper into a half. After that we have to fold its corner. Then we have to fold along with dot lines. Then we can stick each paper on other paper, or else we can follow the steps that were given in a textbook. So with help of all these steps and with help of all this material, we have prepared a windmill, and then we have stick that windmill in our EVS combined book on page number 82. वो विंडमिल बनाने के बाद हमने वो विंडमिल को हमारे EVS कंबाइन बुक में पेज नंबर 82 पे जो बॉक्स नीचे प्रोवाइड किया था उसके अंदर हमें स्टिक करना है. सो यू हैव टू स्टिक दिस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टुडेज लेक्चर. नाउ स्टूडेंट इट्स होमवर्क टाइम. सो अभी आपका होमवर्क. सो योर होमवर्क इज यू हैव टू मेक अ विंडमिल यूजिंग ऑर्गेनिक पेपर. सो आपको क्या करना है, आपको ये जो विंडमिल आज मैंने सिखाया है कैसे बनाने का, वो आपको बनाना है. वो विंडमिल बनाने के बाद आपको वो विंडमिल आपके EVS के कंबाइन बुक में पेज नंबर 82 में जो नीचे बॉक्स प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपको स्टिक करना है. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, जैसे मैंने स्टिक किया है वैसे ही आपको आपके EVS के कंबाइन बुक में स्टिक करना है. सो वो स्टिक करने के बाद आपको उसका फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर अ विंडमिल. आफ्टर प्रिपेयरिंग अ विंडमिल, you have to stick that windmill in your EVS combined book on page number 82 where the box is been provided you. So inside that box you have to stick that windmill. After sticking that windmill, you have to take the photo of that page and you have to send to me. So I hope you have understood about today's lecture. So student, thank you.